Okay, but we have done RNA world, we have done replication of DNA, Michelson and Stahl experiment. Is there any doubt in these topics? यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस बेटे, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? We have also done enzymes in DNA replication. ठीक है, I have told you the functions of helicases, topoisomerases enzyme, DNA polymerases, primerases, and DNA ligases. Okay, so today we are starting with the next topic, and that is transcription and transcription unit. ठीक है, beside these we are well familiar with the process of DNA replication. DNA replication तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उसके बाद का टॉपिक तभी समझ आएगा अगर हमें यहाँ तक आता है. Yes, बेटे, speak up. No problem. So we are starting with the topic transcription and transcription unit. So I am on page number 107 of your NCERT book, and the topic is transcription. So what is transcription? Transcription is the process of copying of genetic information from one strand of DNA into RNA. ठीक है बेटे, here we are not talking about the process of DNA replication. ठीक है, DNA replication जो है उसमें क्या होता है? DNA helix जो है it opens, and later on both the strands of the DNA they behave as the template strand, and with the help of these template strand what is formed? Daughter DNAs are formed. But here the process of transcription, it is entirely different from the process of DNA replication. ठीक है बेटा, here again the opening of the DNA helix takes place. यहाँ पे भी DNA helix की opening होनी है, पर DNA helix की opening होने के बाद both the strands of the DNA they do not act as the guiding strand, or you can say the template strand. दोनों ही strand यहाँ पर template strand की तरह behave नहीं करेंगे. Only the first strand whose polarity is in the direction 3' to 5', वही strand जो है वो कैसे behave करेगा? template strand की तरह behave करेगा, and with the help of that template strand what is later formed? messenger RNA is formed. ठीक है बेटे, so imagine कि DNA helix जो है वो open हो रहा है, और open होने के बाद DNA का जो first strand है उसकी polarity कौन सी direction में है? 3' to 5' direction में है, and the second strand whose polarity is in the 5' to 3' direction. So both of these strands they do not behave as the template. Only the first strand whose polarity is in the direction 3' to 5' it behave as the template strand. Okay बेटे, so कहते हैं कि एक ही strand जो है वो DNA का जो है यहाँ पर use होता है, और उसे strand की help से क्या बनता है? messenger RNA बनता है. ठीक है, why the two strands they do not involved in the process of transcription? So here a description is given in your book. तो देखो, अगर वो कहता है कि दोनों ही strands DNA के template strand की तरह behave करते, तो आपको मालूम है कि दोनों strands जो है DNA के they are the complementary strands to each other. So उनसे बनने वाले जो RNA होने थे, ठीक है बेटे, from the RNA strand which is formed with the help of first strand of DNA, and the RNA strand which is formed with the help of second strand of DNA. These RNA molecules they are also complementary to each other. वो दोनों भी एक दूसरे के complementary होने थे, और इस वजह से क्या हो जाना था? उनकी pairing हो जानी थी, और वो double stranded RNA बन जाते, और इस तरह से आगे वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंगल स्टैंडर्ड. ठीक है, सेकंड वो कहता है कि अगर डीएनए जो है उसके दोनों ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करते, तो उनसे बनने वाले जो आरएनए स्ट्रैंड है उससे आगे जो प्रोटीन्स डेवलप होते हैं, वो प्रोटीन्स जो हैं, ठीक है, वो भी एक दूसरे से क्या करने थे? डिफर करने थे. तो इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती. तो इसीलिए कहता है कि दोनों स्टैंड्स जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ओनली वन स्टैंड इट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. So here what is written? If both strands act as template, they would code for the RNA molecule with different sequences
and in turn they code for different proteins, and the sequence of amino acids in these proteins is also different. That's why it later complicates the genetic information. And the second thing is that two RNA molecules, if produced simultaneously, they would also be complementary to each other, and thus they form double stranded RNA. And this double stranded RNA has no significance for the process of translation. तो इसलिए सिर्फ एक ही स्टैंड डीएनए का कॉपी होता है और वही मैसेंजर आरएनए बनाता है. ठीक है बेटे, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके अंदर आपको दो स्टैंड्स नजर आ रही है. फर्स्ट स्टैंड जो है उसकी पोलैरिटी 3' to 5' डायरेक्शन में है, एंड सेकंड स्टैंड जो है उसकी पोलैरिटी 5' to 3' डायरेक्शन में है. ठीक है बेटे, सेंटर में से उसने आपको आरएनए स्टैंड बनाता हुआ नजर आ रहा है. तो हमेशा हम याद रखेंगे बिकॉज देयर इज द कॉपिंग ऑफ द बेसिस. ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है उसको डीएनए स्टैंड में से रीड किया जा रहा है और उसके बेसिस पे आरएनए जो है उसमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच हो रहे हैं. तो आपको मालूम है कि डीएनए में अगर एडेनाइन प्रेजेंट है तो उस एडेनाइन ने, क्योंकि यहाँ पे डीएनए नहीं बन रहा, डॉटर डीएनए नहीं बन रहा, उसकी जगह पे क्या बन रहा है, मैसेंजर आरएनए बन रहा है. तो दैट एडेनाइन इट इज लेटर बाइंडेड विद द यूरासिल. ठीक है बेटे, तो वैसे एडेनाइन जो उसने किसके साथ बाइंड होना था, थाइमीन के साथ बाइंड होना था, पर इंस्टेड ऑफ थाइमीन आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है, इसलिए यूरासिल जो है उसके साथ जो है ये बाइंड करेगा. ठीक, तो इससे पहले वो कहते हैं कि वी मस्ट हैव टू नो अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो क्या चीज होती है. ठीक है, तो किसी भी डीएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स, it consists of 3 components or 3 regions. See in your book on page number 107 what are these components. Number 1, a promoter region, number 2, the structural gene, and number 3 is the terminator region. So I am on page number 108 of your book and there is one diagram given in your book. ठीक है, figure number 6.9, and here what is written that the first strand of the DNA whose polarity is in the direction 3' to 5', this strand it behave as the template strand. ये स्टैंड कैसे बिहेव करता है, टेम्पलेट स्टैंड की तरह बिहेव करता है. ठीक है, पर जो सेकेंड स्टैंड है जो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है डीएनए का, जिसकी पोलैरिटी कौन सी डायरेक्शन में है, 5' to 3' डायरेक्शन में है, उसको साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या नेम दिया है, दिस स्टैंड इज नोन एज द कोडिंग स्टैंड. ठीक है, वैसे ये कुछ कोड नहीं कर रहा है पर फिर भी साइंटिस्ट जो है उन्होंने इसको क्या नेम दिया है, कोडिंग स्टैंड का नेम दिया है. और जो फर्स्ट स्टैंड है जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है डीएनए का, उसको क्या नेम दिया है, टेम्पलेट स्टैंड का नेम दिया है. तो किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रमोटर रीजन, देन स्ट्रक्चरल जीन एंड देन टर्मिनेटर रीजन. तो कहते हैं कि कोई भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसके अंदर प्रेजेंट ये सारे कंपोनेंट्स जो है उसकी लोकेशन बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर जो है किसका रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पर हम डीएनए के सेकंड स्टैंड का रेफरेंस देते हैं, जिसको साइंटिस्ट ने क्या बोला है, कोडिंग स्टैंड बोला है, जबकि वो कुछ भी कोड नहीं करता है. तो इट इज ओनली यूज्ड फॉर गिविंग द रेफरेंस ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. तो अगर मैं कहती हूँ कि किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट है, तो दिस प्रमोटर इज प्रेजेंट एट द 5' पोजिशन. तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि मैं इसका रेफरेंस किसके बेसिस पे दे रही हूँ, आई एम गिविंग द रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड स्टैंड which is known as the coding stand and it has the polarity in 5' to 3' direction. This means the promoter region is present at the 5' position. All right बेटे, अब वो कहते हैं कि प्रमोटर रीजन के बाद क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है, और स्ट्रक्चरल जीन के बाद क्या प्रेजेंट है, टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट. तो देखो एंजाइम यहाँ पे जिसने आरएनए जो है बनाना है, दैट एंजाइम इज नोन एज द आरएनए पॉलीमरेज. व्हाट इज द फुल नेम ऑफ दिस एंजाइम, द फुल नेम ऑफ दिस एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. द फुल नेम ऑफ दिस एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. ओके बेटे, एंड इट्स फंक्शन इज पॉलीमराइजेशन ऑफ द आरएनए स्ट्रैंड. तो कहते हैं कि ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, प्रमोटर रीजन के पास पहुंचता है, और उस प्रमोटर रीजन के साथ ये बाइंड हो जाता है, इट बाइंड्स विद द प्रमोटर रीजन. ऑलराइट, और जैसे ही ये प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड होता है
तो वहां पे उसी के साथ प्रमोटर रीजन के साथ क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है। तो ये उस स्ट्रक्चरल जीन को क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है। इट पुशेस द स्ट्रक्चरल जीन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन दिस स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन क्या कर रही है, एक गाइड की तरह यहाँ पे बिहेव कर रही है, ये आगे आगे चल रही है और उसके पीछे कौन चल रहा है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चल रहा है, जो एक्चुअली कहाँ पे बाइंड हुआ था, प्रमोटर रीजन पे। और जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्ट्रक्चरल जीन को फॉलो करेगा, वैसे वैसे ये डीएनए स्ट्रैंड पे प्रेजेंट नाइट्रोजेनियस बेसिस को रीड करता जाएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस सेल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्री नाइट्रोजेनियस बेसिस प्रेजेंट है उनको ये उठाता रहेगा एंड कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में जो है उसको ज्वाइन करता जाएगा। तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, आरएनए स्टैंड फॉर्म कर रहा है। सो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आरएनए स्टैंड बनाता जा रहा है और किसको फॉलो कर रहा है, स्ट्रक्चरल जीन को फॉलो कर रहा है। तो व्हेन दिस स्ट्रक्चरल जीन इट फाइनली रीचेस द टर्मिनेटर रीजन, जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन जो है वो किसके पास पहुंचती है, टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचती है। तो सेम टाइम पर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो स्ट्रक्चरल जीन के पीछे है वो भी किसके पास पहुंच जाता है, टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंच जाता है। तो there are some special type of factors that are present in the terminator region and that are responsible for stopping the process of transcription. So उसको RNA polymerase enzyme को वहां पे terminator region पे सिग्नल मिलते हैं that you have to stop the process of transcription now. So ये RNA polymerase enzyme जो है वो अब तक काफी सारा RNA strand तैयार कर चुका है। तो at the terminator region it gets detached from the substrate, ये अपना जो सबस्ट्रेट है उससे अलग हो जाता है एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है वो आरएनए स्टैंड की फॉर्म में जो है यहाँ पे अब किसमें कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी आरएनए स्टैंड जो बन चुका है वो आरएनए स्टैंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम छोड़ देता है एंड दिस फ्री आरएनए इज नोन एज द नेसेंट आरएनए, इट इज नोन एज द नेसेंट आरएनए। नाउ द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इट गेट्स फ्री, और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहले कौन से टेम्पलेट पे काम कर रहा था, ठीक है, 3' to 5' पे काम कर रहा था, वहां टर्मिनेटर रीजन पे ये पहुंच गया। अब वहां से जंप करके इसने दूसरे वाले पे आ जाना है, तो दूसरा स्टैंड जो है, ठीक है, उस पे इसने जंप कर गया, तो दूसरा स्टैंड जो है वो अब कैसे बिहेव करने लग जाएगा, इट बिहेव एज द टेम्पलेट स्टैंड एंड द फर्स्ट स्टैंड विच अर्लियर बिहेव एज द टेम्पलेट स्टैंड इट नाउ बिहेव एज द कोडिंग स्टैंड। ठीक है बेटे, तो इस तरह से पोलैरिटी जो है वो एक बार जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है उसके बाद क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। पहले जो स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड था वो अगली बार क्या बन जाता है, कोडिंग स्टैंड बन जाता है। दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स? यस मैडम, यस मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम, जो 3' to 5' है वो टेम्पलेट स्टैंड की तरह पहले बिहेव करता है, हाँ जी, ठीक है, और दूसरा वाला कोडिंग स्टैंड की तरह बिहेव करता है। तो फिर जब दूसरे वाला टेम्पलेट स्टैंड की कैसे बिहेव करेगा तो उसकी पोलैरिटी 5' to 3' होगी, तो फिर वो तो कंटिन्यूस नहीं बनेगा बेटे नंदनी। आरएनए। अगर आपने ध्यान से देखा है तो 3' to 5' स्टैंड जो है उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन चल रही है ना, तो देखो वो 3' एंड से स्टार्ट हुई है, यानी प्रमोटर रीजन से स्टार्ट हुई है, पर वो एंड कहाँ पर हुई है, टर्मिनेटर रीजन पे हुई है ना। अब टर्मिनेटर रीजन जो है उसी जगह पे आप नीचे की तरफ देखिए फिर से, ठीक है, तो टर्मिनेटर रीजन पे आकर उसमें जंप करना है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ फिर से पोलैरिटी क्या है, 3' to 5' है, ठीक है बेटे, सिर्फ उनके नेम चेंज होंगे, पोलैरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमेशा 3' to 5' वाला ही स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा। ओके बेटे, सिमरन, निधि, यस बेटे, एनी स्टूडेंट हैव any doubt? This is a very important topic. If the student have any doubt, then she can ask the question. Otherwise, trouble may be there. Is it clear to all the students? Yes, ma'am. Okay, beta, shall I proceed further or shall I repeat it again? Proceed further. Okay. So, अब तक आपको देखो बेटा ये पता लग गया है कि out of the 2 strands of DNA, only 1 strand involved in the process of transcription, and that strand which is involved is known as template, whereas the other strand which is used for giving reference of the different regions of the
transcription unit, that stand is known as the coding stand. And only 3 components are present: promoter, structural gene and terminator. RNA polymerase bind with promoter. Then it follows the structural gene, which is flank over the DNA stand. Okay, but whose polarity is in the 3' to 5' direction, and the RNA polymerase follows that structural gene. And later on, it forms the RNA stand. And when the structural gene it reaches the terminator region, then the signal is received by the structural gene as well as the RNA polymerase enzyme. And after receiving that signals, which is actually related with stopping of the transcription, what happened? The RNA polymerase enzyme, it gets detached from the substrate, it stops the process of transcription, and as a result, a free RNA is formed, and this RNA is known as the nascent RNA. So you must remember the term nascent RNA. All right. So now there is one paragraph that is given here, and it is related with the revised definition of the gene. So earlier what we have told you, हम जब भी आपको जीन की डेफिनेशन देते हैं तो हम आपको ये कहते हैं कि there are some smaller units present on the DNA, and these smaller units are actually known as the genes. ठीक है बेटे, अब तक हम ये बताते आ रहे हैं, पर अब वो कहते हैं कि there is some modification in the definition of gene. Now what is the revised definition of gene? Instead of using the term gene here, we are going to use one special term for gene now, and that is known as cistron. What is it? It is known as cistron. So cistron is a new term that is used for gene. तो कहते हैं कि cistron या gene जो है, according to the new definition क्या है? कहते हैं कि DNA के ऊपर present जो है, DNA के ऊपर present DNA का ही कुछ ऐसा पोर्शन है जो किसके लिए कोड करता है, सर्टेन प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, वो जीन है, और जो कुछ भी कोड नहीं करता वो अननेसेसरी पोर्शन है. ठीक है बेटे. So what are cistron? Cistron are such sequences that are present on the DNA and that are coding for something, and that something is actually the protein. But there are some other reasons present on the DNA that are not coding for anything, and these are the non-coding sequences. Okay बेटे, on the basis of this, in case of eukaryotic organisms, ठीक है, अगर हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उस केस में कहते हैं कि हमारी जो सिस्ट्रॉन है या जीन है वो कैसे होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक होते हैं. ठीक है, तो मोनोसिस्ट्रॉनिक है. और अगर हम बात कर रहे हैं किस केस की, प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया के अंदर वो कैसे होते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं. ठीक है, तो ये जीन्स जो है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होगी, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है. सो मेनी स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. तो कहता है कि यूकैरियोट्स के केस में ये सिस्ट्रॉन कैसी होती है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है. और किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, स्प्लिट जीन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि कई सारे जीन्स एक के पीछे एक पड़े हुए हैं. ठीक है, तो डीएनए का कुछ पोर्शन ऐसा है जो कोड करता है, उसके बाद थोड़ा सा गैप हो सकता है, और वो गैप जो है वो किसका हो सकता है, नॉन कोडिंग रीजन का हो सकता है. फिर कुछ कोडिंग रीजन आ सकते हैं, फिर गैप हो सकता है, फिर कुछ कोडिंग रीजन आ सकते हैं. ऐसे करके एक जीन जो है उसके बाद कुछ खाली जगह है, फिर एक जीन है, देन फिर कुछ खाली जगह है, इसलिए हमने उसको क्या नेम दिया है, मोनोसिस्ट्रॉनिक का नेम दिया. ठीक है बेटे, पर प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है. प्रोकैरियोट्स में कई सारे क्लस्टर ऑफ जीन्स जो है वो एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, और उसमें इस तरह का कोई स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है वो नहीं है. तो देखो, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, व्हाट आई सेड, द सिस्ट्रॉन इज मोनोसिस्ट्रॉनिक. So here I am going to introduce two more terms. One is introns and other are exons. तो अभी अभी मैंने आपको बोला कि डीएनए का वो पोर्शन जो किसी चीज के लिए कोड करता है उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं. तो यहाँ पर वो कोडिंग रीजन्स जो है उनको हम क्या कह सकते हैं, तो these coding regions they are actually known as the exons also. ठीक है बेटे, और जो कुछ भी कोड नहीं करते हैं उनको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है, इट इज नोन एज एंट्रॉन्स. तो कहते हैं कि जब डीएनए जो है उसमें से क्या तैयार होना है, मैसेंजर आरएनए तैयार होना है, देन दैट मैसेंजर आरएनए कंटेन बोथ द कोडिंग एज वेल एज द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. उसमें कोडिंग सीक्वेंसेस भी है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस भी है, बट वी नो दैट the coding sequences which are actually known as exons, they are significant for us. So messenger RNA में से हमने क्या हटाने होंगे, हमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो हमको क्या करना है, रिमूव करना है. तो जब हम मैसेंजर आरएनए जो है उसकी प्रोसेसिंग करते हैं,
और उसमें से हम नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जिनको एंट्रॉन्स कहते हैं उनको रिमूव कर देते हैं और सिर्फ एक्सॉन्स को या कोडिंग सीक्वेंसेस को रखते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्प्लाइसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए. इट इज नोन एज द स्प्लाइसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए. ओके बेटे. So transcription is the synthesis of the messenger RNA from the DNA, and this later on this messenger RNA actually contains both the coding as well as the non-coding sequences, and these non-coding sequences are known as the introns and coding sequences are known as the exons. So we have joined the exons but we removed the introns, and this process is known as splicing of the messenger RNA. This is clear beta? So now I am going to take the types of RNA and the process of transcription in case of prokaryotes or the bacteria. So here I have written some headings that is generally related with the process of transcription in case of bacteria. Okay बेटे. अब वो कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसमें कितने तरह के आरएनए प्रेजेंट है. तो बैक्टीरियल सेल जो है उसमें 3 तरह के 3 टाइप ऑफ आरएनए जो है वो काम करेंगे. ठीक है. फर्स्ट मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए यहाँ पे कैसे बिहेव करेगा, टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा लेटर ऑन, किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है. तो अभी हम पहले पढ़ेंगे कि मैसेंजर आरएनए जो है जो बाद में टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है वो एक्चुअली बनता कैसे. ठीक है. बिकॉज ये ट्रांसक्रिप्शन है. फिर कहते हैं कि ट्रांसफर आरएनए जिसका क्या फंक्शन है. ट्रांसफर आरएनए जैसे नेम से पता लग रहा है उसका फंक्शन है अमाइनो एसिड्स जो है उनको ट्रांसफर करना. ठीक है. अमाइनो एसिड्स जो उनको लेके आना है, उनको लेकर ऑन ज्वाइन करवाना है. ये सारे फंक्शन किसके हैं, ट्रांसफर आरएनए के हैं. एंड राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल आरएनए जो है उसके 2 फंक्शन है. इधर इट बिहेव एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट और समटाइम्स इट आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट. कई बार वो रिएक्शन का रेट जो है उसको फास्ट करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, और कई बार वो क्या करता है एक स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह बिहेव करता है जहां पे कि ट्रांसक्रिप्शन होना है, यानी इट एक्ट एज राइबोसोम. All right, and what I have written at the last point. तो last point में मैंने लिखा है single DNA dependent RNA polymerase is present in case of bacteria. ऐसे नहीं है कि खूब सारे RNA polymerases यहाँ पे present हैं. सिर्फ और सिर्फ एक ही RNA polymerase एंजाइम है जो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन का उसको कंप्लीट करता है बैक्टीरिया के. ओके. नाउ सी द डायग्राम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, that how this transcription takes place in prokaryotes. That the same diagram is given in your NCERT book in figure number 6.10. Okay, but see the enzyme. This is RNA polymerase enzyme, and there are 3 steps in the process of transcription. Number 1, initiation. Number 2, elongation, and number 3 is termination. As I have told you earlier under the transcription unit. So in the transcription unit, you all know there is a region present, and that region is known as the promoter region. Okay, बेटे. तो फर्स्ट स्टेप इज नोन एज इनिशिएशन. तो इनिशिएशन जो है उसमें क्या होना है, ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट होगा. कब इनिशिएट होगा, जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर आएगा. ठीक है बेटे. तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे आ चुका है और कहाँ पे पहुंचा है, उस डीएनए स्टैंड के पास पहुंच गया है जिसकी पोलैरिटी कौन सी डायरेक्शन में है, 3' to 5' डायरेक्शन में है, एंड उसमें एक साइट प्रेजेंट है जिसका नेम है प्रमोटर रीजन. अब देखिए प्रमोटर रीजन के पास क्या है. देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द प्रमोटर रीजन, एंड दीज आर नोन एज द सिग्मा फैक्टर्स. ओके बेटे. सो दीज सिग्मा फैक्टर्स दे हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड विद द प्रमोटर रीजन. ये क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं कि वो प्रमोटर रीजन के साथ बाइंड कर जाए. तो जैसे ही वो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड करता है तो आपको मालूम है कि प्रमोटर रीजन के बाद क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है. So after the binding of the RNA polymerase with the promoter region, the structural gene it finally moves over the DNA strand. ये structural gene क्या कर रही है, आगे आगे move कर रही है, it behave as a guide. और उसके पीछे कौन है, RNA polymerase enzyme है. तो RNA polymerase enzyme DNA strand जो है उसको read करता जा रहा है और उसके corresponding bases जो है उसको सेल में से उठाकर join करता जा रहा है. इसका मतलब RNA polymerase enzyme यहाँ पे क्या कर रहा है, RNA strand जो है उसका polymerization कर रहा है. तो इमेजिन करिए कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसके साथ क्या चल रहा है, एक आरएनए स्टैंड बनता हुआ है जो उसके साथ चल रहा है. और ऐसे करते करते स्ट्रक्चरल जीन जो उसने कहाँ पहुंच जाना है, तो दिस स्ट्रक्चरल जीन इट फाइनली रीचेस द 5' एंड
And you know that at the 5' end what is present actually? So at the 5' end there is a terminator region. ठीक है बेटे. So ये terminator region जो है वहां पे present है, और वहीं पे वो कहते हैं कि terminator region जो है, जैसे अभी आपको बताया कि पहले उसने किसके साथ ज्वाइन किया, सिग्मा फैक्टर के साथ ज्वाइन किया, तो जैसे ही वो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा वहां भी उसे एक फैक्टर मिलेगा, एंड दैट फैक्टर इज नोन एज द रो फैक्टर. एंड आफ्टर बाइंडिंग विद दिस रो फैक्टर व्हाट हैपेंड, पहले तो स्ट्रक्चरल जीन वहां पहुंची है, फिर आरएनए पॉलीमरेज पहुंचा है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसको सिग्नल मिली है that this RNA polymerase enzyme when it bind itself with the Rho factor it gets detached from the RNA. ठीक है, तो जो RNA स्टैंड तैयार हुआ है, देखो स्टेप नंबर 3 के अंदर RNA आपको अलग होता हुआ नजर आ रहा है, एंड यहाँ पे एंजाइम अलग हो गया है रो फैक्टर के साथ. तो ये फ्री RNA जो थर्ड स्टेप के अंदर आपको नजर आ रहा है, दिस RNA इज एक्चुअली नोन एज द नेसेंट RNA. ठीक है बेटे, तो इनिशिएशन में प्रोसेस इनिशिएट होना है विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर. इलॉन्गेशन में आरएनए पॉलीमरेज जो है उसने क्या करने हैं, बेसिस अटैच करते जाने हैं कॉम्प्लीमेंट्री फैशन में, और आरएनए स्टैंड को बनाना है. एंड लेटर ऑन व्हाट हैपन इन द टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन जो है उसके अंदर जो आरएनए स्टैंड तैयार हुआ है, व्हेन इट रीचेस आरएनए पॉलीमरेज, व्हेन इट रीचेस द which region, terminator region, it comes in contact with the Rho factor, and later on what happen, the RNA strand which is actually held by the RNA polymerase, it finally gets detached from the RNA polymerase in the form of a free RNA, and this free RNA is actually known as the nascent RNA. This is clear to all the students, beta? Yes, beta, this is clear to all the students. Yes, Still ma'am. I have 9 minutes, so I have. Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी, सिमरन, तनविंदर, निधि, किसी भी स्टूडेंट को अगर डाउट है तो अभी बोलेंगे इसी टाइम. If any doubt is there, सब कुछ क्लियर है? Kevin is there in the meeting? Yes, ma'am. Kevin, why you are usually absent and you are not attending the Zoom sessions regularly? वो 2 दिन से थोड़ा ठीक नहीं था. अभी तो बेटा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, और अगर आप इसके बीच के लेक्चर मिस कर देंगे तो आगे की चीजें आपको जो पीछे से रिलेटेड है वो नहीं पता लगेंगी, और इसका वेटेज भी एग्जाम में ज्यादा है. तो आप कोशिश करें कि अगर आप बीमार भी हैं तो यू टेक द मेडिसिन एंड कम इन टाइम. ऑल राइट, ओके, एंड प्लीज Yes. लिसन द रिकॉर्डिंग. जो भी रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाती है वो आप सुनते रहें, जिससे आपका कोई भी ऐसा ना हो कि आपको टॉपिक ना समझ में आए. ठीक है, ये वाला टॉपिक क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन इन Yes, ma'am. प्रोकैरियोट्स. ओके बेटे, सो आई एम ऑन पेज नंबर 110 नाउ. ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाला मैं आपको बताऊंगी, अगले दिन मैं फिर से रिपीट करूंगी इसको. जेनेटिक कोड पहले आ गया था, अभी हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स देख रहे हैं. ठीक है बेटे, तो अब वो कहते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स थे उसमें एक चीज थी कि देखो डीएनए जो है उसकी हेल्प से मैसेंजर आरएनए तो बन गया है, और ये मैसेंजर आरएनए इसने लेटर ऑन किस में पार्टिसिपेट करने हैं, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करने हैं ना. पर आपको मालूम है कि इन द बैक्टीरियल सेल व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, कि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है न्यूक्लियस के आसपास. सो इसका मतलब द जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. इसका मतलब जो मैसेंजर आरएनए बनेगा वो कहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, क्योंकि कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब वो मैसेंजर आरएनए जो है वो एक्चुअली साइटोप्लाज्म के अंदर ही पड़ा हुआ है. पर ऐसा यूकैरियोट्स में नहीं होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस से अलग है. तो कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए जो है उसकी सिंथेसिस तो किस में होगी, न्यूक्लियस में होगी, पर जब इसने ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करना है इस मैसेंजर आरएनए ने, तो जो fully synthesized messenger RNA it later enters into the cytoplasm and then it enters in the process of translation. ठीक है बेटा, ये चीज अब याद रखेंगे. So you have to underline few lines that are given in your book on page number 110, paragraph number 2. ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 2 के बाद जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें आपको दिया गया है कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन they are taking place at the same compartment because there is no separation of cytoplasm and nucleus in the bacteria. ठीक है,
तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर ही मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, पर यूकैरियोट्स में ये मैसेंजर आरएनए जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस में बनता है एंड लेटर ऑन साइटोप्लाज्म में जाता है जब उसने ट्रांसलेशन करनी है। अब हम फटाफट देख रहे हैं हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स। अगेन द प्रोसीजर इज सेम, बट इंस्टेड ऑफ वन सिंगल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पर एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है। Instead of these, how many polymerase enzymes are present? So here we have 3 polymerase enzymes. ठीक है बेटे, how many polymerase enzymes are there? 3 polymerase enzymes are there. So we must have to remember RNA polymerase 1, then RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. तो हमने याद रखना है कि RNA polymerase enzyme किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है? राइबोसोमल RNA का। और राइबोसोमल RNA जो है वो डेंसिटी के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। So they transcribe ribosomal RNA of 28S, 18S and 5.8S. ठीक है बेटे, S वर्ड यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? तो आपको लास्ट ईयर बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट जो है इसकी यूनिट क्या होती है? स्प्रेड वर्ग होती है। ठीक है, सो हियर द यूनिट ऑफ द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट इज नोन एज स्प्रेड वर्ग। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड 28S, 18S and 5.8S. So these RNAs are on the basis of their density gradient. Okay, तो सेकेंड वाला जो हमारा एंजाइम है वो RNA पॉलीमरेज सेकेंड है। तो RNA पॉलीमरेज सेकेंड का क्या फंक्शन है कि वो मैसेंजर RNA का प्रीकर्सर फॉर्म करता है, यानी प्रीलिमिनरी फॉर्म मैसेंजर RNA की फॉर्म करता है। एंड RNA पॉलीमरेज एंजाइम थर्ड जो है वो क्या करता है? 3 चीजें बनाता है। नंबर 1 ट्रांसफर RNA, नंबर 2 5sRNA means small ribosomal RNA, and number 3 snRNA that is small nuclear RNA. तो ये हमें लर्न करने होंगे। अब देखो कुछ खास नहीं है। अब वो कहते हैं कि जो बनने वाला मैसेंजर RNA है, अभी मैंने आपको बताया था कि यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं जिसमें कि कुछ सीक्वेंसेस कोडिंग होते हैं और कुछ नॉन कोडिंग होते हैं। तो इसलिए वो कहता है कि यहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए आपके सामने तैयार होके आएगा, दैट मैसेंजर आरएनए कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ सीक्वेंसेस, कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग। तो ये काफी लंबा मैसेंजर आरएनए होगा। हमने क्या करनी है? इसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो प्रोसेसिंग के दौरान वी हैव टू रिमूव द एंट्रॉन्स व्हिच आर नॉन कोडिंग एंड वी हैव टू जॉइन द एक्सॉन्स व्हिच आर कोडिंग। ठीक है बेटे, तो आप देखो इसमें वो कहता है कि हमने क्या किया? एंट्रॉन्स जो है उनको तो रिमूव कर दिया और एक्सॉन्स को ज्वाइन कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्प्लाइसिंग कहेंगे। प्रोसेसिंग में फर्स्ट स्टेप क्या है? स्प्लाइसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए। सेकेंड स्टेप जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं? कैपिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए करते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर कैपिंग जो है उस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? तो कैपिंग जो है वो हमेशा मैसेंजर आरएनए जो है उसके 5' एंड के ऊपर की जाती है और उसमें खास तरह के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो उसके 5' एंड पर अटैच होते हैं जिनका नेम है मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटे, सीधा डायग्राम यहाँ पे देखो GPPP लिखा है ना और ऊपर छोटा स्मॉल m लिखा है, तो इसका नेम है मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम 5' एंड पे अटैच कर देंगे मैसेंजर आरएनए के। इस प्रोसेस को हम कैपिंग कहेंगे। उसके बाद कहते हैं कि नेक्स्ट तीसरा स्टेप जो है दैट इज टेलिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे देखिए पॉली एडिनाइलेशन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टेलिंग हम हमेशा 3' एंड पे करते हैं और 3' एंड जो है उसके ऊपर हमने क्या करना है? बहुत सारे 200 से लेके 300 तक क्या ऐड कर देने हैं? एडिनाइलेट रेजिड्यूज ऐड करने हैं, एडिनाइन्स ऐड कर देनी है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से खूब सारे एडिनाइन्स जब अटैच कर देंगे तो हमारे पास एक लॉन्ग टेल बन जाएगी and that is known as poly A tail. Poly A tail उसको इसीलिए बोला है बिकॉज हमने क्या ऐड किए हैं वहां पर? एडिनाइन्स ऐड किए हैं। तो दिस इज नोन एज द प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए। 3 स्टेप थे। नंबर 1 स्प्लाइसिंग, नंबर 2 कैपिंग, नंबर 3 टेलिंग। ओके बेटे, तो इस तरह से जब मैसेंजर आरएनए में ये तीनों चीजें हो जाएंगी उसके बाद जो मैसेंजर आरएनए है वो फुल्ली मैच्योर मैसेंजर आरएनए होगा। अर्लियर हम इसको क्या कह रहे थे? तो कहते हैं कि पहले जब मैसेंजर आरएनए की प्रोसेसिंग नहीं हुई थी तब हम इसको हेट्रोजेनियस आरएनए बोल रहे थे, पर अब जब इसकी प्रोसेसिंग हो गई है उसमें स्प्लाइसिंग भी हो गई है, कैपिंग भी हो गई है, टेलिंग भी हो गई है, नाउ दिस हेट्रोजेनियस आरएनए इज नाउ नोन एज द फुल्ली मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए। और ये फुल्ली मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए किसके अंदर बना है आपको पता है? न्यूक्लियस के अंदर बना है। अब ये न्यूक्लियस में से बाहर आ जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा?
साइटोप्लाज्म में, और आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स हैं, और उन राइबोसोम्स के पास चला जाएगा और वहां पे आगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा एंड बिहेव एज अ टेम्पलेट. दिस इज क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स बेटे? दिस इज क्लियर? हाँ जी, वापस आइए. Is there any doubt? So we have completed up to page number 111 and tomorrow we will start the topic genetic code. तो आज ही इस टॉपिक को पढ़ लेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, बस आपने इतना याद रखना है कि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए बनता है, फिर साइटोप्लाज्म में जाता है, फिर ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करता है. पर प्रोकैरियोट्स में क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल फ्रीली सस्पेंडेड है, तो साइटोप्लाज्म में ही दोनों रिएक्शंस एक साथ होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी और ट्रांसलेशन भी. ठीक है, वही मैसेंजर आरएनए एक तरफ तैयार हो रहा होता है और जितना तैयार हो जाता है वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट भी करने लग जाता है. ओके बेटे? Still, when you read the chapter, if you have any doubt, you can ask me in tomorrow's lecture, or you can send me any question if you feel that you have to ask. All right?